Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Law and Easement, Session 1.2, Transferability of Property. Under previous sessions, we were discussing Chapter 2, which is from Section 5 to 53A. In that we have divided that chapter 2 under two subpoints. One is 5 to 37 and second is 38 to 53A. 5 to 37 deals with both movable and immovable property, and the applicability of section 38 to 53A is only over immovable property. So under 5 to 37 we have discussed till section 8. So let's revise it quickly from section 5 to 8. Section 5 we have seen the from section 1 we have discussed the scope and extent of transfer of property act. Then under section 2 we have discussed if there are part B of a state and transfer of property act is applicable under state through state amendment, then what conditions are there, or that act does not affect these things, and chapter 2 will not applicable to Muslims, the most important part of section 2. Then we have seen section 3. Under section 3 we have discussed the definition of immovable property. Then we have discussed the concept of attestation, physical verification or physical understanding of that. I'm sorry, that's not physical verification, it's personal acknowledgement. The concept of personal acknowledgement under Indian law, under section 3 of which deals with attestation, immovable property definition. Then we have discussed the concept of notice, actual and constructive notice. Under constructive notice we have discussed 5 points. Under 5 points, explanation 1, explanation 2, explanation 3 of section 3. Then we have discussed the section 4. Under section 4 we have discussed that transfer of property act is not exhaustive. We can take the help of other statutes like contract act and registration act. Then under chapter 2, section 5 we have discussed the definition of transfer of property. Then under section 6 we have discussed which things or which properties cannot be transferred, which rights cannot be transferred. We have discussed space succession, other than that easement, mere right to sue, right to re-entry, and etc. We have discussed under section 6. Then section 7 deals with the competency of parties, who can be transferer, who cannot be transferer. Then under section 8 we have seen लीगल इंसिडेंट कि अगर कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है, अनक्वालिफाइड ट्रांसफ़र है, अनकंडीशनल ट्रांसफ़र है, तो उस ट्रांसफ़र में जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसके साथ साथ क्या क्या लीगल इंसिडेंट्स होंगे। जैसे कि अगर लैंड ट्रांसफ़र हुआ है तो लैंड के साथ साथ उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, लैंड के साथ साथ उसके ईजमेंटरी राइट्स, rent and other profits arising out of that land, all things attached to that land must be transferred with the land. So till now we have done section 8, and now we are moving towards the section 9 that deals with how transfer made. Transfer can be made written or orally under transfer of property act, but if in any section under any provision there is a specific provision regarding the transfer, the procedure of transfer, whether it is in it must be in writing or it must be in it must be orally, then that provision shall be
followed for the transfer of property under that specific provision. For example, if under sale where a person wants to sell, then under section 54 to 57, I'm sorry, under section 54 to 57, there is clearly written that in concept of sale there must be a sale deed, and that must be in writing, and registration of that sale deed must be compulsory. So if there is any provision written in that in particular section, particular provision, then that must be followed in. So the general rule is transfer can be made orally or transfer, but if there is specific provision, then that would prevail and that will be followed for a valid transfer. एग्जाम्पल, और अगर एक्शनेबल क्लेम की बात करें हम, एक्शनेबल क्लेम वी आर डिस्कसिंग द पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी chapter 3 to chapter 8, and last chapter is 130 to 137 actionable claim. In that they clearly written that transfer of actionable claim must be in writing, but there is no need of registration of it. The general rule regarding transfer is, I'm sorry, the general rule regarding transfer is, if there is any immovable property and the value of that immovable property is more than 100 rupees, immovable property जो कि 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है, देन उसके ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र मस्ट बी ओनली बाय रिटन डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी. राइटिंग में होना चाहिए ट्रांसफ़र, और उस जो भी राइटिंग का इंस्ट्रूमेंट है उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है अगर एक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 100 रुपये से अधिक उसकी वैल्यू है. पहला जनरल रूल ये है. उसके अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, इमूवेबल है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, सॉरी, अगर कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, तो उसका ट्रांसफ़र ओरली हो सकता है, राइटिंग ज़रूरी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी नहीं है अगर मूवेबल है और 100 रुपये से कम. यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और 100 रुपये से अधिक उसकी वैल्यू है, देन वो उसका ट्रांसफ़र ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी भी नहीं है. तो जनरल रूल में मूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ मोर देन 100 रुपीज़ के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है. देन सेक्शन 9 ये कहता है हाउ ट्रांसफ़र मेड. इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंडीशन. जब कोई ट्रांसफ़र होता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रांसफ़र हुआ ए और बी में, या जो भी ट्रांसफ़र है ट्रांसफ़री में, ट्रांसफ़र अगर कोई ऐसी कंडीशन रख देता है ट्रांसफ़र के समय पे कि वो फुलफ़िल होने के बाद ही इंटरेस्ट अराइज़ होंगे, या फिर इंटरेस्ट अराइज़ होने के बाद कोई कंडीशन फुलफ़िल करोगे तो ही वो इंटरेस्ट को उनका बेनिफिट ले सकोगे. तो ट्रांसफ़रर अगर 2 प्रकार की कंडीशन रख सकता है ट्रांसफ़र के समय पे. पहली कंडीशन ये है कि पहले कंडीशन फुलफ़िल करो तब जाके ट्रांसफ़र होगा. तो ट्रांसफ़र से पहले कंडीशन फुलफ़िल करना है तो इसको बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट. ट्रांसफ़र जब ही होगा जब कंडीशन फुलफ़िल कर दोगे. और दूसरा है कि ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन डाल दी गई है कि अब ट्रांसफ़र के बाद कंडीशन ये है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ये कार्य करना होगा. तो कंडीशन किस हद तक वैलिड होती है, किस हद तक वॉइड होती है, कौन कौन सी कंडीशन वॉइड हो सकती हैं, कौन कौन सी कंडीशंस वैलिड हो सकती है, वो हम अंडर नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. कई बार अब एक चार्ट के थ्रू समझिए. आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए चार्ट को. कंडीशन वैलिड
एंड कंडीशन वॉइड। कंडीशन वैलिड एंड कंडीशन वॉइड। अगर कंडीशन वैलिड है तो ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा, ऑब्वियस सी बात है। कंडीशन वैलिड, ट्रांसफ़र वैलिड। अब हम इधर आते हैं, कंडीशन वॉइड है, कोई भी कंडीशन है जो कि वॉइड है, तो उस संदर्भ में क्या ट्रांसफ़र भी वॉइड हो जाएगा? तो यहाँ दो कंडीशन है, अगर कोई कंडीशन है जो कि वॉइड है तो दो चीज़ें निकल के आती, कंडीशन वॉइड ट्रांसफ़र वैलिड, कंडीशन वॉइड ट्रांसफ़र वॉइड। कंडीशन वॉइड ट्रांसफ़र वैलिड और कंडीशन वॉइड ट्रांसफ़र भी वॉइड। एक कंडीशन वॉइड को रखिए, उसमें दो पार्ट बनाइए, कंडीशन वॉइड हुई और ट्रांसफ़र वैलिड हो गया, एक तो ये कंडीशन हो गई, और कंडीशन वॉइड हुई तो ट्रांसफ़र भी वॉइड होगा, एक ये कंडीशन हो गई। हमको पढ़ना है सेक्शन 10, 11, 12 के अंडर कंडीशन वॉइड एंड ट्रांसफ़र वैलिड। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो वॉइड हो जाती हैं परंतु ट्रांसफ़र वैलिड बना रहेगा। हम सेक्शन 10 के अंडर एब्सोल्यूट वॉइड कर दिया गया है, सेक्शन 11 में पार्शियल वॉइड कंडीशंस हैं, और सेक्शन 12 डील करता है इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट्स। सेक्शन 10 में क्या है? whenever there is any condition in which, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 10, 11, 12 तीनों कंडीशन सब्सिक्वेंट से डील करते हैं। हमेशा सेक्शन 10, 11, 12 में जो भी रूल्स लिखे हुए हैं वो ऐसी कंडीशन डील करते हैं कि ट्रांसफ़र हो चुका है, अब ट्रांसफ़र होने के बाद आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने के लिए ट्रांसफरर ने उस इंस्ट्रूमेंट में कहा गया है ट्रांसफरर के द्वारा कि ट्रांसफरी को ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी, ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए कि ट्रांसफ़र हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जब एक पर्टिकुलर एक कंडीशन डाल दी गई, ट्रांसफ़र के बाद आपको ये करना होगा। अब अगर उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया है तो उस ट्रांसफ़र पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम सेक्शन 10, 11, 12 पढ़ते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि बाद में फुलफ़िल ना भी करें तब भी ट्रांसफ़र वैलिड बना रहता है। क्या क्या कंडीशंस हैं? सेक्शन 10 पढ़ते हैं। सबसे पहले, whenever there is any condition in which transferor make the transferee absolutely restrained from his interest, अगर ट्रांसफ़रर ने ट्रांसफ़र कर दिया है और उसके बाद कंडीशन ये डाली है कि जैसे ही आपके पास ये पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी का जो भी ट्रांसफ़र हुई है, उस प्रॉपर्टी के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट, उनको आप फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल, ए ने बी को लैंड बेचा, अब पहले बेचा तो वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सेल डीड मान के चलिए, एक डीड के थ्रू उसने उसको बेच दिया, ट्रांसफ़र हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब उस ट्रांसफ़र में एक कंडीशन है कि जैसे ही आप बी ओनर हो जाएगा उस लैंड का, अब इस लैंड को से जितने भी इंटरेस्ट अराइज हो रहे हैं सारे बी के हो गए। कंडीशन ये डाली है ए ने कि जैसे ही आप इसके ओनर हो जाओगे आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर दिया है फॉर ट्रांसफरिंग दैट इंटरेस्ट अराइजिंग आउट ऑफ दैट लैंड टू एनीवन। तो अंडर सेक्शन 10 इस कंडीशन को वॉइड कहा गया है, लेकिन जो ट्रांसफ़र हुआ है, बेचा है, सेल डीड हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो वैलिड होगा। सेक्शन 10 में ये कंडीशन दे रखी है। तो इसके अलावा इस सेक्शन में कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस देखेंगे, कुछ एक केस भी है जिससे लेटेस्ट कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी एक्सेप्शन से रिलेटेड। एक बार फिर से समझिए सेक्शन 10 को कि अगर कोई भी एक कंडीशन है, एक कौन सी कंडीशन है कि ट्रांसफरर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रहा है ट्रांसफरी को, ए एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रहा है बी को कि जैसे ही आपके पास ये ज़मीन आएगी उसके मालिक आप बन जाएंगे, उससे रिलेटेड सारे इंटरेस्ट आपके होंगे, उसके बाद आप
उन इंटरेस्ट को किसी और को एलिनेट नहीं कर सकते हैं या किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 के अंडर इस कंडीशन को वॉइड माना गया है। और लेकिन जो ट्रांसफ़र हुआ है, जिस ट्रांसफ़र के थ्रू बी ओनर बना है उस प्रॉपर्टी का, वो हमेशा वैलिड रहेगा। इसके एक्सेप्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।